तो आईआईटी मंडी का एडमिशन प्रोसेस क्या था? लाइक व्हाट वर द स्टेप्स वंस यू गेट योर रिजल्ट ऑफ आईआईटी जैम? व्हाट वर द स्टेप्स इंक्लूडेड टू गेट इनटू एनी आईआईटी और स्पेसिफिकली आई कैन से आईआईटी मंडी? It was definitely very difficult because full 9 to 5 कॉलेज से आके then शाम को थोड़ा रेस्ट लेके I would sit to study. So have to have that, कि करना है तो करना पड़ेगा. जैसे June 2025 only, that time only I had enrolled in Bansal Biology also. कि I will regularly attend all the Bansal Biology classes. क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी. टेस्ट सीरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उससे पता चलता था कि परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, रिवीजन कैसा चल रहा है. सपोज कि आपको वापस प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है फॉर योर गेट बीटी एग्जाम के लिए, ओके, देन व्हाट वर द मिस्टेक यू विल अवॉइड दिस टाइम? हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल बायोलॉजी. आज हमारे साथ है ईशानी. Ishani has secured a seat in IIT Mandi for MTech in Biotechnology. Welcome, Ishani. Welcome to the... Hello, sir. Thank you, sir. Okay. So guys, Ishani हमारे साथ जुड़ी थी हमारे GATE Biotechnology course and also she has purchased our TIFR test series, right, Ishani? Yes, sir. Okay. So सबसे पहले ईशानी congratulations और thank you टाइम निकालने के लिए हमारे लिए. No problem, sir. Definitely. Okay. ईशानी, जब आपका आईआईटी मंडी में सिलेक्शन हुआ था तब आपको कैसा लगा था जब आपको पहली न्यूज मिली थी? Sir, I was with my family that time and it was a very emotional moment. We were all very happy when I got to know that I secured a seat there. So it was already decided कि आपको एमटेक करना है आईआईटी मंडी से ही करना है या फिर कुछ और प्रोसेस था और या फिर आपके दिमाग में कुछ और भी था? नहीं सर, I had always decided कि मेरे को MTech ही करना है and I applied to like a few IITs and IIT Mandi was definitely a good option for me. Okay. तो आईआईटी मंडी का एडमिशन प्रोसेस क्या था? लाइक व्हाट वर द स्टेप्स वंस यू गेट योर रिजल्ट ऑफ आईआईटी जैम? व्हाट वर द स्टेप्स इंक्लूडेड टू गेट इनटू एनी आईआईटी और स्पेसिफिकली आई कैन से आईआईटी मंडी? So sir, basically to get into any MTech program, you have to crack GATE first. So I had appeared for both GATE Biotechnology and Excel. So मेरा Excel का score better आया था and through the GATE Excel score, around April के time पे every IIT के portal पे they have an opening where you have to apply individually to all their MTech programs. Okay. So basically for IIT Mandi also, I had applied to their MTech program on their website, the individual IIT Mandi website. Okay. And through there, उसके बाद basically you also have to apply to a common admission portal called COAP. उसमें से सारे offers मिलते हैं. So my IIT Mandi admission का seat I got to know through that portal. After I had applied individually to IIT Mandi. Okay, तो approximately कितनी rank होनी चाहिए to get into IITs for MTech program? Sir, I think for this mainly the GATE score matters more than the rank, and my GATE score was 540. Okay. And my AIR was 1490. Okay, so basically इतनी अगर आपकी इतनी रैंक होगी then you can comfortably get into any IITs, right? Yes sir, yes sir. So जब आपका प्रोसेस चल रहा था IITs के लिए तो उसके लिए कोई इंटरव्यू था या नहीं था? Any interview? No sir, there was no interview. Just GATE score. Okay, so आपने GATE BT IIT जैम एंड TIFR की प्रिपरेशन एक साथ करने की किया था, राइट? Yes sir, yes. तो आपने ये मैनेज कैसे किया था? Sir, I was also in my 4th year of BSc honors. जब मेरा when I was preparing for this, it was definitely very difficult because full 9 to 5 कॉलेज से आके then शाम को थोड़ा रेस्ट लेके I would sit to study. So have to have that, कि करना है तो करना पड़ेगा. जैसे So I just pushed. Let's get into it. कि जैसे for example आपने कब decide किया okay चलो अब मैं prepare करना start कर देती हूँ for all these exams, right? Yes sir, I decided in
June 2025 only. That time only I had enrolled in Bansal Biology also. Ki Okay. I will regularly attend all the Bansal Biology classes, question practice karungi, and through that I decided. सो बेसिकली आप आपका एक टाइम टेबल बता सकते हो कि डेली का कैसा होता था? क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि उन्हें भी लगता है कि अच्छा ओके हमें भी ये सारी चीजें करनी है, बट उनको लगता है कि वी आर लैकिंग समथिंग समवेयर। ओके, कि फॉर एग्जांपल इश्यूज तो बहुत आते होंगे, कभी आपका डिसिप्लिन आप डिसिप्लिन से करते हो, कभी ठीक से हो जाता है पूरा जो वर्कआउट हो जाता है पूरा टाइम टेबल, कभी वर्कआउट नहीं हो जाता, कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि होगा या नहीं होगा। तो अगर एक ये सारी चीजें आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो हमारे व्यूवर्स के लिए, जो स्टूडेंट है, जो एस्पायरिंग स्टूडेंट है, उनके लिए। तो सर सिंस मैं कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन कर रही थी, मेरा 9 to 5 पूरा कॉलेज में रहता था। मैं अब कॉलेज में रहती थी, फिर 5 o'clock कॉलेज से वापस आके आई वुड रेस्ट फॉर सम टाइम, एंड देन अराउंड 6 से 8 बजे तक मेरा एक स्टडी सेशन में बैठती थी। ओके तब आई वुड लेक्चर देखती थी एंड आई वुड डू सम सेल्फ स्टडी रिविजन आल्सो। ओके एंड उसके बाद 1-2 घंटे का डिनर ब्रेक लेके 9 से लेके 12 अराउंड 10 से लेके 12-1 बजे रात तक मैं पढ़ती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। ओके एंड लाइक देन अगेन कॉलेज एंड देन टू नेक्स्ट डे कॉलेज में भी सर समटाइम्स आई वुड ट्राई टू सिट, मैं अपना नोट्स का बुक हमेशा लेके जाती थी। सो कॉलेज में भी आई वुड ट्राई टू सिट एंड रिवाइज, या फिर बंसल बायोलॉजी के ऐप पे मैं नोट्स देखती थी एंड आई वुड ट्राई टू रिवाइज दैट वे। ओके। एंड टेस्ट वगैरह आप कैसे कैसे डिसाइड करते थे कौन सी टेस्ट कब देनी है, या फिर वीकेंड्स पे, या फिर 3-4 डेज के एक में स्पैन में आपको टेस्ट सीरीज देते थे? सॉरी, टेस्ट सीरीज, आई एम आस्किंग अबाउट द टेस्ट सीरीज, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते थे कि वीकेंड में टेस्ट देते थे, या फिर 3-4 डेज के स्पैन में टेस्ट देते थे, या फिर दे वर डिसाइडिंग ओके ये पोर्शन ये सिलेबस आई विल कंप्लीट द सिलेबस ऑफ द टेस्ट एंड आई राइट द टेस्ट। तो आपका कैसा होता था? सर आई वुड ऑल्सो डू द सेम। वीकेंड्स पे या जब भी छुट्टी होती थी आई वुड सिट एंड रिवाइज एवरीथिंग एंड देन आई वुड गिव द टेस्ट। टेस्ट सीरीज के भी टेस्ट देती थी एंड टेस्ट सीरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उससे पता चलता था कि परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, रिविजन कैसा चल रहा है। सो वीकेंड्स पे बैठ के आई वुड गिव टेस्ट। ओके, तो मैं जो हमारी क्लासेस रहती थी काफी स्ट्रक्चर्ड रहते थे कि पहले से ही पता चलता था कि कौन सी क्लास कब होने वाली है, एंड देन अगेन टेस्ट भी आप रेगुलर देते हो, तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलता है आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। यस सर, बहुत डिसिप्लिन क्लासेस रहती थी। that was very helpful to me during my preparation. तो जैसे कोई फैकल्टी है या फिर कोई लेक्चर है कि आपको लगा अच्छा ये चीज मुझे बहुत हेल्पफुल रही थ्रू आउट माई प्रिपरेशन? हाँ सर आपकी क्लासेस एंड अवंतिका मैम की क्लासेस, दोनों की क्लासेस आई वुड बहुत अच्छी लगती थी मुझे। सर आप जैसे जनरल एप्टीट्यूड पढ़ाते थे, आपकी क्लास करने के बाद सारे क्वेश्चन हो जाते थे PYQ के। यस सर, सो वो बहुत हेल्पफुल था सर मेरे लिए। क्या आप हमारे जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको कोई एडवाइस देना चाहते हो इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एनी गेट बीटी और गेट एक्सेल एग्जाम? Sir, I would say that you have to do regular revision, then regularly attend the classes, and question practice is very, very important. जहाँ से भी question practice कर सकते, you should definitely try to do as much question practice as possible. If I ask you, suppose कि आपको वापस प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है फॉर योर गेट बीटी एग्जाम के लिए, ओके, देन व्हाट वर द मिस्टेक यू विल अवॉइड दिस टाइम? सर आई वुड से कि मैं कभी कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा कम करती थी। एंड लास्ट के मोमेंट में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा किया था। आई वुड से कि मैं रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करती इंस्टेड ऑफ फोकसिंग टू मच ऑन द एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। या एंड रिविजन आल्सो आई वुड ट्राई टू sit for more revision, like I would do more revision and try to brush up my concepts more. Okay, and what about previous questions? Like आपने उन्हें पढ़ा था, उनको कितने बार आपने go through किया? Yes sir, वो previous year question तो मैं करती थी regularly, but या
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसी के बेसिस पे नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस भी बनते हैं. सो दैट ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि aspiring students को ज्यादा करना चाहिए. Okay, good. So before wrapping up this interview, मैं बस आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो अभी स्टूडेंट्स हैं, ओके, फॉर एग्जांपल आई एम अ स्टूडेंट, आई वांट टू स्टार्ट फॉर द गेट पीटी एग्जाम. ओके, मेरे पास काफी अच्छा टाइम है कि फॉर सपोज द एग्जाम इज इन फेब 2027 और मेरे पास काफी अच्छा टाइम है. देन हाउ कैन आई मैनेज द स्टडीज फॉर माय गेट बीटी एग्जाम starting from this July? Like how should I So I would yeah. say, yes, sir. I would say that compartmentalize every month into, finishing what were topics. You go through your entire syllabus, Okay. compartmentalize all the months, Okay. and try to finish your all your syllabus by December. Okay. This includes finishing the entire syllabus and also question practice of the previous year questions of the topics. And इसमें, if you are appearing for BT, maths को भी you have to incorporate as well as general aptitude as well. Similarly for Excel, chemistry and general aptitude you also have to incorporate. And December से लेके February, December से Jan, fully you should do only question practice and test series. That way I feel your practice will be very strong and the grip or your grip on the subject will be very good. Okay. That way in Feb your exam will go very well. Okay. मतलब Yes. अगर मैं जुलाई से स्टार्ट कर दूं, it is very much possible to complete my syllabus before December, and in Jan and Feb I Yes, should yes. only go for revision and question practice, right? Yes, sir. Yes, sir, definitely. ओके ईशानी, थैंक यू सो मच ईशानी, काफी हेल्पफुल था. आई मीन बहुत ही आपने क्रिस्प वे में हर एक चीज बता दी कि कैसे क्या करना है करके. ओके Okay, thank you, sir. ओके, थैंक यू ईशानी. Thank you, sir. या